Hello students, today we shall do your chapter 3 Excel creating worksheet. Now why do we use Microsoft Excel? Now we use Microsoft Excel because it is a powerful spreadsheet program which allows us to organize the data, to complete our calculations and to represent our data in graphs and to develop reports. Now we will do your exercise of chapter number 3. Pick the correct answer. The collection of rows and columns is called workbook, worksheet, or document. Now, the collection of rows and columns is called worksheet. Number 2, we can also select a cell in a worksheet using the control key, alt key, or arrow key. We can select a cell in a worksheet using the arrow key. Number 3, the number of columns in a worksheet is 16384. Option A is your correct answer. Number 4, we can make a worksheet look more attractive and legible by formatting. If we format our worksheet, it will be more attractive and legible. Legible means हम उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं. Number 5, dash means the way in which data is settled within the boundary of a cell. That is called as alignment. Alignment means to align means to position within a particular region or boundary. So alignment is the way in which data is settled within the boundary of a cell where we do our work or input our data. Number 6, the dash formatting is used to format the data according to specified condition. That is your conditional formatting, because based on certain specific conditions, we will format our data. Therefore, this is called as conditional formatting. Next, write T for true and F for false. Cells may contain 4 types of data. This statement is false because cells contain 3 types of data. They are your labels or text, values or numbers, and formulas or expression. Number 2, we cannot save worksheet data as a PDF and HTML file. The answer is false. Now students, first we have to understand what is a PDF and what is a HTML file. Now PDF stands for Portable Document Format. Now PDF, Portable Document Format, is used when we need to save the files that cannot be modified. Modified means we cannot make any more changes to it, but they still need to be shared and printed. So this is called as PDF or Portable Document Format. Now what is HTML? HTML is Hypertext Markup Language. HTML is a standard markup language or code to create your web pages. Now, we cannot save worksheet data as a PDF and HTML file. Definitely we cannot, because this has no work in our worksheet data. Next, describe the structure of a web page and its contents, your HTML. So what work does it have in a worksheet data? Nothing. So this statement is false. Next, number 3, we cannot cancel the last change that we made to the worksheet. This statement is false because there are a number of options with which we can make our changes to the data which we put into the cells in the worksheet. Next, number 4, we can change the font of numbers in Excel. Font means your alphabet size. So we can change it by doing it in the following ways. First, you will select the cell in which you have inputted the data. जिस भी सेल में आपने डेटा डाला है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आप जो रिबन में होम टैब होता है उस पे क्लिक करेंगे. उसके बाद वहां पे लिखा होगा कैलिब्री. कैलिब्री मीन्स फॉन्ट साइज के लिए होता है वो. वहां पे उसके साइड में डाउन एरो होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट व्यू विल सिलेक्ट वॉट एवर फॉन्ट साइज आपको चाहिए. जो डेटा पे आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए, वो फॉन्ट साइज को कैलिब्री के डाउन एरो से, एंड अप्लाई कीजिए फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अवेलेबल साइजेस. नेक्स्ट, नंबर 5,
Excel automatically left aligns the text in a cell and right aligns the number. This is true. Alignment हमने पढ़ा बच्चों कि it is the way in which the data is set within the boundary of a cell. Next, number 6. Border separates the data from surrounding cells. This is true. Now, what are the steps to apply border to your worksheet cells? First, you will select the cell which needs to be formatted. Formatted matlab changed. Click on the Home tab. फिर click on the down arrow, or the shortcut for border is also Alt plus H plus B. When you click on the down arrow, आपको बहुत सारे डिजाइड बॉर्डर स्टाइल्स के ऑप्शंस आएंगे. जो भी स्टाइल आपको उसमें अप्लाई करना है आप कर सकते हैं. जैसे लेफ्ट बॉर्डर को आप चूज कर सकते हैं, या राइट बॉर्डर, या बॉटम बॉर्डर, या फुल ऑल 4 बॉर्डर्स. तो एक्सेल इमीडिएटली वो चेंज असाइन करेगा. एक बार जब आप वो डिजाइड सिलेक्टेड सेल के बाहर क्लिक करेंगे तो वो चेंज उसमें आपको रिफ्लेक्ट कर लेगा. तो ऐसे हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्कशीट सेल्स में. नेक्स्ट है fill in the blanks. There are dash rows and dash columns in a single worksheet. There are 16384 rows and 1048576 columns in a single worksheet. A dash identifies each column and a dash identifies each row. तो जो कॉलम होता है उसके लिए लेटर होता है और जो रो होता है उसके लिए हम नंबर देते हैं. So a letter identifies each column and a number identifies each row. Number 3, by using dash feature, one can revert the last changes. Revert मतलब हम अपने लास्ट जो भी चेंजेस हमने किए हैं, सपोजिंग गलती से हमने वो चेंजेस हमको फिर से वापस लाना है तो हम undo फीचर यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब नंबर 4, dash command is used to quickly create a merge cell to hold the title text. अब merge cell क्या होता है? merge मतलब मिक्स करना. तो अगर हमें एक टाइटल को 2-3 सेल्स के अंदर डालना है, ठीक है, जैसे सेल नंबर 1, 2, 3 में एक ही टाइटल हमको डालना है तो हम उसको मर्ज करेंगे, मिलाएंगे. तो उसमें हम देंगे मर्ज एंड सेंटर कमांड. मर्ज एंड सेंटर कमांड क्या करेगा? वो जो भी आप टाइटल डालोगे वो तीनों सेल के लिए पहले उन तीनों सेल को एक सेल बना के उसको सेंटर में ले आएगा. वो टाइटल को तीनों सेल के सेंटर में एक सेल बना के तीनों सेल के सेंटर में वो टाइटल डाल देगा. सो वी यूज द कमांड मर्ज एंड सेंटर कमांड टू क्विकली क्रिएट अ मर्ज सेल टू होल्ड द टाइटल टेक्स्ट. Next, number 5, dash can be added to the cells for separating the data from surrounding cells. Borders. Next, differentiate between the following: workbook and worksheet. अब वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होता है? हमारे एक्सेल शीट में हम वर्क करते हैं अपने वर्कशीट्स पे और बहुत सारी वर्कशीट्स को मिला के बनता है वर्कबुक. सो फर्स्ट डिफरेंसेस इन एक्सेल, many individual worksheets together make a workbook. But what is a worksheet first? In Excel, the data is organized in rows and columns collectively, which are called a worksheet. Next difference. Workbook is a file that has multiple spreadsheets. Workbook क्या है? Workbook आपका एक फाइल है जो इसमें बहुत सारे स्प्रेडशीट्स या वर्कशीट्स है. और वर्कशीट क्या है? It is a single page spreadsheet containing information. ये एक सिंगल पेज है और वर्कबुक में मल्टीपल पेजेस है. नेक्स्ट, नंबर 3, इट इज अ सिंगल एक्सेल फाइल. और वर्कशीट क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट और अ स्प्रेडशीट. तो वर्कबुक हमारा फाइल है, वर्कशीट हमारा डॉक्यूमेंट है. वर्कबुक में मल्टीपल स्प्रेडशीट्स या वर्कशीट्स है. वर्कशीट एक सिंगल पेज स्प्रेडशीट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं. Workbook in Excel, many individual worksheets together make a workbook. Worksheet in Excel, data is organized in rows and columns, collectively called as a worksheet. Next difference is moving data और copying data में क्या difference है? अब students, moving data हम उसको मूव करेंगे एक न्यू लोकेशन में. किसको? डेटा को. सो इन एक्सेल, मूविंग डेटा इन्वॉल्व्स कटिंग and pasting the selected cells or ranges to a new location. Copying data क्या है?
कॉपिंग डेटा इन्वॉल्व्स डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेट एक चीज का डुप्लीकेट बनाना मतलब एक चीज को कॉपी करना। तो जब हम सिलेक्टेड सेल्स या रेंजेस का एक डुप्लीकेट बना के उनको एक और दूसरे रीजन में पेस्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं कॉपिंग डेटा। बट अगर हम उसको सिर्फ कट एंड पेस्ट करेंगे और मूव करेंगे एक नए लोकेशन को, उसे हम बोलेंगे मूविंग डेटा। नेक्स्ट, आंसर इन 1 or 2 sentences व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्या क्या यूजेस है? एक, इट मैनिपुलेट्स नंबर्स। सेकंड, इट ऑर्गेनाइजेस योर डेटा। देन इट स्टोर्स योर डेटा एज अ वर्कबुक। एंड फोर्थ, इट शेयर्स योर डेटा। मैनिपुलेटिंग नंबर्स मतलब आपने कुछ नंबर्स उसमें इनपुट में दिया सेल्स में, एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हम कुछ फॉर्मूला या फंक्शंस देके हम नंबर्स के साथ किसी का रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। वी कैन ऐड सम फ्यू मार्क्स, वी कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ सैलरीज कैलकुलेट करके, वैसे उसको बोलते हैं मैनिपुलेटिंग द नंबर्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा, जैसे हम सब स्टूडेंट्स के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो वो भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हेल्प से कर सकते हैं। थर्ड is storing your data in a workbook form, and fourth is sharing data. So these are the four main uses of Microsoft Excel. Next, what is the default row height and column width in Excel? Default row height आपका approximately 15.00 है, measured in points, and column width क्या है? Approximately 8.43. It is measured in characters. Now can you tell me why characters? Because column width आपका क्या करता है? Alphabets लेता है, and row क्या लेता है? Numbers लेता है. That is why rows measured in points and column width is measured in characters. Number 3, why do we need to select cells in Excel? हमें Excel में सेल्स को क्यों सिलेक्ट करना जरूरी है? Now we need to select cells in Excel because we need to perform tasks like editing, calculating, and formatting. Editing means making changes, calculating means to make calculations, formatting means to change according to the conditions given. Now, what is the need of formatting in Excel? अब formatting की जरूरत क्या है Excel में? फॉर्मेटिंग मेक्स द वर्कशीट्स जिसपे हम काम करते हैं मोर प्रेजेंटेबल, अट्रैक्टिव, एंड गिव्स इट अ मोर लेजिबल आउटलुक, ताकि जब आप एक वर्कशीट को देखें तो वो एक नीट फॉर्मेट में होता है। पहले क्या होता था, हम जब एक्सेल शीट्स नहीं होते थे तो पेन पेपर में रोज कॉलम्स ड्रॉ करके उसको करते थे, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता था अच्छे दिखने में। बट यहाँ पे अच्छे से बॉर्डर लाइंस रोज कॉलम्स बने हुए, सो फॉर्मेटिंग दीज rows and columns makes your worksheets more presentable, attractive, and gives it a more legible outlook. Now, what is the use of border? Border की use क्या है worksheets में? Borders are added to worksheet cells to separate them from surrounding cells. अब एक सेल को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो उसमें एक बॉर्डर डाल दीजिए, तो उसलिए हम बॉर्डर यूज करते हैं। बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे कंप्यूटर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। Number F1. What are the features of Excel? To edit and format data, to use formulas and functions, to print worksheets, and 4 is to create charts and objects जो हम next chapter में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। Next, number 2. What is the use of alignment? Name the different alignment buttons. Alignment का मतलब क्या है? Align मैंने बोला कि उसको ऐसे पोजिशन करना कि एक बाउंड्री या रीजन के अंदर आए। सो अलाइनमेंट मीन्स द वे इन विच द डेटा इज सेट। हम किस पे काम कर रहे हैं? डेटा पे, डेटा इनपुट कर रहे हैं ना कंप्यूटर में, एक्सेल शीट में। सो ये जो डेटा हम सेट करेंगे अगर वो प्रॉपरली अलाइन होता है एक सेल के बाउंड्री में, उसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। नाउ नेम द डिफरेंट अलाइनमेंट बटन्स। डिफरेंट अलाइनमेंट बटन्स आर योर लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, एंड सेंटर अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट समझ में ही आता है, बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट डेटा लेफ्ट को अलाइन होगा, लेफ्ट को सेटल होगा। राइट अलाइन बाय डिफॉल्ट अलाइन्स द नंबर डेटा टू द राइट। अलाइन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब स्लीपिंग लाइन पैटर्न में आपका अलाइन होगा। अलाइन वर्टिकली स्टैंडिंग लाइन फॉर्म में आपका अलाइन होगा। नाउ वर्टिकली जब आप उसको अलाइन करते हो तो जब आप रो साइज को इंक्रीज करोगे उसी के बाद उसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। एंड द नेक्स्ट इज सेंटर अलाइनमेंट।
That means it will be aligned to the center. Number 3, what is the use of conditional formatting? Write the steps to remove conditional formatting. Now, conditional formatting is used to assign certain formatting only when the value of the cell meets the specified condition. हम एक सेल में जो वैल्यू देते हैं, अगर वो आपके जो स्पेसिफाइड कंडीशन है उसको मीट करता है, तभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम देते हैं. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग? सिलेक्ट, पहले तो आप जब भी कुछ करेंगे आप सेल को सिलेक्ट करोगे. आप सिलेक्ट द सेल फ्रॉम वेयर यू वांट टू रिमूव द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. फिर उसके बाद आप होम टैब पे जाओगे. होम टैब पे जाओगे तो वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आएगा, उस पर क्लिक करोगे. उसके बाद आप चूज करोगे क्लियर रूल्स. क्लिक ऑन क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स फ्रॉम द साइड मेन्यू. कंडीशनल फॉर्मेटिंग गेट्स रिमूव्ड. ये आपको प्रैक्टिकली करके एक बार प्रैक्टिस करना होगा. आप पहले क्या करोगे टू रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग? जिस भी सेल से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना है उसको सिलेक्ट कीजिए. फिर होम टैब पे क्लिक कीजिए. होम टैब के बाद आपको दिखाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उस पर क्लिक कीजिए. उसके बाद चूज क्लियर रूल्स, उसके ऊपर क्लिक कीजिए फ्रॉम द साइड मेन्यू. फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका रिमूव हो जाएगा. नाउ नंबर जी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. योर टीचर आस्क्ड यू टू क्रिएट अ टेबल ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्सेल who are good at various sports activities. While making the table, you have forgotten to add an important row. Now, you want to insert the row in the table without disturbing the whole table. By which option will you do so? अच्छा, अब पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. आपके टीचर ने आपको एक टेबल ऑफ स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाने के लिए दिया है एक्सेल में, जो कि सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अच्छे हैं. नाउ टेबल बनाते समय आप एक इंपॉर्टेंट रो भूल गए. अब एक्सेल शीट्स में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स में हम अरेंज करते हैं ना डेटा को. तो आप ये टेबल बनाते वक्त आपने एक इंपॉर्टेंट रो छोड़ दिया, बट अभी आपको उसको इंसर्ट करना है. इंसर्ट मतलब अंदर डालना है टेबल, वो एक्सेल शीट के टेबल के अंदर, पूरे टेबल को डिस्टर्ब नहीं करते हुए. आपने पूरा टेबल बना दिया, एक रो आप इंपॉर्टेंट रो छोड़ दिए बीच में, तो अभी आपको उसको अंदर डालना है विदाउट डिस्टर्बिंग द होल टेबल. कौन सा ऑप्शन चूज करके बनाएंगे? अब इसको हम क्वेश्चन को समझ में आ गया हमको. अब आंसर इज, इन ऑर्डर टू इंसर्ट द फॉरगॉटन रो to add the data of the student who is good in various sports activities, first you select the row where you want to insert the new row. जिस भी स्टूडेंट का डेटा आप भूल गए हो, पहले आप वो रो को सिलेक्ट करिए जहां पे आपको नए रो को डालना है या इंसर्ट करना है. हमेशा सिलेक्ट द सेल, फिर यू क्लिक ऑन होम टैब. नेक्स्ट होम टैब के ऊपर एक डाउन एरो ऑफ इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए. पहले आपने क्या किया, पहले जहां पे आपको नया रो इंसर्ट करना है उस पे सिलेक्ट कीजिए. फिर क्लिक ऑन द होम टैब फ्रॉम द रिबन. देन क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ इंसर्ट. देन क्लिक ऑन इंसर्ट शीट रोज, क्योंकि आपको एक पूरा रो इंसर्ट करना है जो आप भूल गए थे. सो क्लिक ऑन इंसर्ट शीट रोज. उसका आप शॉर्टकट है Alt+I+R. I stands for insert and R stands for row. Now doing this, the new row will appear and all the rows that follow shift downwards. ऐसे आपका एक नया रो इंसर्ट हो सकता है. So students, we have come to the end of this chapter. अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए इस पे तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स बिलो. मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ. एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो डालूं तो आपको पता चले. काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टूडेंट्स. थैंक यू.